Good morning, students. Now, today we shall continue with the explanation of the chapter The Indigo, where we had left in our previous lesson. Now, in the previous class, we had studied that Gandhiji had agreed with the amount of compensation that the Britishers were giving him. So, what he said that the amount of compensation didn't matter. The amount of refund was less important than the fact that the sharecroppers the landlords they had to agree to the demands of the farmers. They had to agree to the demands of the peasants. And now the peasants, they had learned the courage, they had learned that now they could fight against the wrong laws of Britishers. Clear? So after that, what happened was that after some time, as it was seen, within a few years, the British planters abandoned their estates. That is, they left their estates when it was not going to be profitable for them. What happened was that they left their estates, and sharecropping also disappeared. The sharecropping also stopped. This was the impact of the struggle that Gandhiji had started over there. Now, Gandhi never contented himself with large political or economic solutions. He saw the cultural and social backwardness in the Champaran villages and wanted to do something about it immediately. That is, he was never contented with only the political issues. तब वो ये नहीं चाहते थे कि खाली मैं पॉलिटिकल इश्यूज़ को ही सॉल्व करूं और उसकी वजह से मैं फेमस हो जाऊं, बल्कि वो सोशल और कल्चरल बैकवर्डनेस जो थी उसको भी हटाना चाहते थे. वहाँ के लोगों की जो सोशल और कल्चरल बैकवर्डनेस थी, वहाँ के लोगों की जो लैक ऑफ हाइजीन थी, उस सब को वो रिमूव करना चाहते थे. तो उन्होंने क्या करा, वहाँ पे दो लोगों का अपॉइंट करा, एक तो महादेव देसाई और एक नरहरि पारिक. एंड they were the two disciples of Gandhiji who remained over there in Champaran in order to work for the local people over there. And several more came from Bombay, Pune and other distant places over there. And even Gandhiji's youngest son, Devdas Gandhi, also arrived from the ashram, and also Mrs. Kasturba Gandhi. Both of them, they came over there in order to remove the backwardness of that place. And primary schools, they were opened in 6 villages, and Kasturba Bai even taught the rules of personal cleanliness and community sanitation to the people over there. Now, Gandhiji found that the health conditions, they were miserable over there. Health conditions, they were so miserable that people didn't even have the access to the proper health services. And Gandhiji got a doctor who could remain over there to volunteer for 6 months. और वहाँ पे क्या था, सिर्फ 3 मेडिसिन अवेलेबल थी, एक तो कैस्टर ऑयल और क्विनीन और सल्फर ऑइंटमेंट. गांधी जी ने देखा कि वहाँ पे जो विमेन हैं उनके भी कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे रहते थे, वो बहुत अनहाइजीनिकली रहती थी. तो एक दिन कस्तूरबा जी ने उन लेडीज़ को बोला कि तुम लोग प्रॉपर वॉश्ड क्लोथ्स क्यों नहीं पहनते हो. तो वो उनके जवाब सुन करके बिल्कुल चंड रह गई, बिल्कुल सरप्राइज रह गई जब उन लोगों ने कहा कि यही एक साड़ी है जो हम पहनते हैं. वी आर हैविंग ओनली दिस वन साड़ी एंड वी डोंट हैव अनदर वन सो दैट वी कैन वॉश एंड वियर. सो ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम ऑल्सो. दैट इज़, उन्होंने ये नहीं कि आश्रम का काम अपना छोड़ दिया, वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देना बंद कर दिया, वहाँ पे ध्यान देना बंद कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. He sent regular instructions by mail and asked for financial accounts. And once he also wrote to the residents of the ashram that the latrines of the ashram, they had to be cleaned. At that time, there were only the temporary latrines over there, where the trenches were dug, and when they were filled again, they had to be cleaned. So now Champaran, it proved to be a turning point in Gandhi's life. Now it didn't begin as an act of defiance. दैट इज़, इट वॉज नॉट एन एक्ट ऑफ डिफायंस. मतलब गांधी जी ये नहीं कि वो अंग्रेज़ों के खिलाफत ही करना चाहते थे, बस ये शो करना चाहते थे कि हम अंग्रेज़ों के अगेंस्ट हैं, अंग्रेज़ कुछ भी करें हमें वो एक्सेप्टेबल नहीं है.
वो ये कहते थे कि मैंने जो भी करा अपने कंट्री के लिए करा, और मैंने जो भी करा वो गरीब किसानों के लिए करा. And this was the typical Gandhi pattern. His politics were intertwined with the practical day-to-day problem of the millions. मतलब वो ना सिर्फ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे बल्कि डे टू डे प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना चाहते थे. And his was not a loyalty to abstractions, it was a loyalty to living to the human beings. Abstractions मतलब वो सिर्फ नियमों पे, कायदों पे और अपने उसूलों पे ही नहीं चलना चाहते थे. वो ये नहीं मानते थे कि अपने उसूलों पे ही चलना है मेरे को सिर्फ, और मैंने जो नियम मान लिए बस उन पे ही चलना है, बल्कि उनका मेन मकसद क्या था? मानवता की सेवा करना. In what everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free. Means they wanted to make Indians self-reliant. Early in the चंपारण एक्शन, मतलब जब ये चंपारण का एपिसोड चल रहा था तो एक पैसिफिस्ट था चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज के नाम का. वो गांधी जी का फॉलोअर था. हालांकि वो ब्रिटिशर था लेकिन वो गांधी जी का बहुत अच्छा फॉलोअर था. वो गांधी जी से मिलने आया था क्योंकि वो अब कहीं और जा रहा था अपनी ड्यूटी के लिए. तो गांधी जी के लॉयर फ्रेंड्स थे तो उन्होंने बोला कि क्यों नहीं हम इसकी हेल्प करें, क्योंकि ये ब्रिटिशर है तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए हमारे लिए सही रहेगा. बट गांधी वॉज वेहेमेंटली अपोज. वेहेमेंटली मतलब गांधी जी ने इस बात का स्ट्रांगली अपोजिशन किया. बहुत स्ट्रांगली उन्होंने इस बात को अपोज किया कि हम किसी ब्रिटिशर को यूज़ करके फ़ाइट नहीं करेंगे. अगर हम किसी ब्रिटिशर को हमारी साइड पे लेकर के फ़ाइट करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि ब्रिटिशर्स सोचेंगे कि इंडियंस अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते, इनको अपने लड़ाई लड़ने के लिए, इन बैटल्स को फाइट करने के लिए भी हमारी ज़रूरत है. तो हम मिस्टर एंड्रूज़ को नहीं यूज़ करेंगे. तो राजेंद्र प्रसाद क्या बोलते हैं कि उन्होंने हमारे माइंड्स को अच्छी तरह से पढ़ लिया था. वो समझ गए थे कि हम सेल्फ रिलायंट नहीं हो रहे हैं अभी, तो और वो हमें सिर्फ सेल्फ रिलायंस ही सिखाना चाहते थे. तो उन्होंने यही कहा कि हम किसी ब्रिटिशर को नहीं यूज़ करेंगे बल्कि हम खुद ही उनके अगेंस्ट लड़ेंगे. सो सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बोर्न टुगेदर. तो शेयर क्रॉपर्स को हेल्प करने के साथ साथ इसमें क्या सिखाया उन्होंने? इंडियंस को सेल्फ रिलायंट होना, आत्मनिर्भर होना, और उसके अलावा इससे इंडियंस इंडिपेंडेंस का जो स्ट्रगल था वो भी स्टार्ट हो गया था. सो विद दिस द चैप्टर इज ओवर. Tomorrow onwards we shall be beginning with the question answers of the chapter. Thank you.